EIS Chapter 4 E-commerce, M-commerce and Emerging Technology. First one is characteristics of cloud computing. Strict is awesome ray Pappu. On demand, scalability, multi-sharing and tenancy, workload movement, resiliency, pay-per-use. O stand here for on demand, S for scalability, M for multi-sharing and tenancy, M for workload movement, Ray for resiliency, and Pappu means pay-per-use. Awesome ray Pappu. Awesome ray Pappu. नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. एलपीजी से मार 2, ठीक है, एलपीजी से मार 2. तो एल स्टैंड फॉर लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड, पी फॉर स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस, जी फॉर ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स, एम फॉर मिनिमाइज मेंटेनेंस. नाउ नेक्स्ट टाइम इज monitor project more effectively, A for achieve economies of scale, A for pervasive accessibility. Here A means accessibility, R means reduce capital cost. तो एलपीजी से मार 2. L for less personal training is needed, streamline business process, globalize the workforce, minimize maintenance, monitor project more effectively, achieve economies of scale, pervasive accessibility, reduce capital cost. Next is drawbacks of cloud computing. Its technique is SIA. So S stands for security and scalability, I for interconnection and interoperability, A stands for availability. So SIA. What are the drawbacks of cloud computing? SIA. And characteristics of public cloud. What are the characteristics of public cloud? इसमें हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल. स्केलेबल अवेलेबल है तो अफोर्डेबल भी होना चाहिए. हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, अफोर्डेबल कॉस्ट, लेस सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलए मतलब स्ट्रिक्ट एसएलए. हाईली स्केलेबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल, लेस सिक्योर, स्ट्रिंजेंट एसएलए. और ये अमेंडमेंट है. व्हाट आर द पर्टिनेंट इश्यूज रिलेटिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्या पर्टिनेंट इश्यूज है. इसकी जो टेक्निक है वो लिस्ट बी बग्स. एल स्टैंड फॉर लीगल इशू, I interoperability, S for security issue, C S stand for here security issues, software development in cloud, T threshold policy, unexpected behavior, bugs in large scale distributed system. तो list B bugs, legal issue, interoperability, security issue, software development in cloud, threshold policy, unexpected behavior, bugs in large scale distributed system. List B bugs. These are the pertinent issues related to cloud computing. Now next is what is mobile computing. Mobile computing refers to a technology that allow transmission of data via a portable device without being connected to fixed physical link. मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जो डाटा के ट्रांसमिशन को अलाउ करती है किसी भी पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू बिना कोई फिक्स फिजिकल लिंक के. तो व्हाट इज मोबाइल कंप्यूटिंग. मोबाइल कंप्यूटिंग रेफर्स टू अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा वाया एन ए पोर्टेबल डिवाइस विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू फिक्स्ड फिजिकल लिंक. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. इसकी जो ट्रिक है वो बनेगी रसेल. तो आर स्टैंड फॉर रिमोट एक्सेस, मतलब रिमोट एक्सेस टू वर्क कोडर डिटेल की देनी है हमें. रिमोट एक्सेस जो वर्क कोडर डिटेल होती है उसकी एक्सेस दे देनी है. रिमोट एक्सेस टू कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, ठीक है. कॉर्पोरेट नॉलेज बेस को जस्ट लाइक डाटा, जो डाटा के अपने होते हैं ना, डाटा का बेस होता है उसकी तरह अपने को उस नॉलेज उसको एक्सेस दे देनी है. कॉर्पोरेट नॉलेज बेस की उसे एक्सेस दे देनी है. तो रिमोट एक्सेस 2 पॉइंट आ गए आर से. रिमोट एक्सेस वर्क कोडर डिटेल की, कॉर्पोरेट नॉलेज बेस की. और एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम. हमें कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन की एक्सेस भी दे देनी है किसी भी टाइम और कभी भी दे देनी है एक्सेस. तो आर फॉर रिमोट एक्सेस और ए फॉर एक्सेस और एस स्टैंड फॉर सेल्स पर्सोनल टू अपडेट वर्कलोड, ताकि सेल्स जो पर्सोनल है वो वर्कलोड का स्टेटस है उसे अपडेट कर पाए. सेल्स पर्सोनल टू अपडेट वर्कलोड स्टेटस. Effectiveness and efficiency in decision making. So here E stand for effectiveness and efficiency in decision making. So remote access to work order detail, remote access to corporate knowledge base, access to information from anywhere anytime. और सेल्स पर्सनल अपडेट कर सके वर्क ऑर्डर स्टेटस को. इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. इट्स शॉर्ट ट्रिक इज बिप्स ह्यूमन. बी insufficient bandwidth. I transmission interface. P power consumption and potential health hazard. तो P का हो गया power consumption and potential health hazard. S stand for security. H human interface with device. बिप्स ह्यूमन insufficient bandwidth. B for bandwidth. I का interface. P का power consumption, potential health hazard. S stand for security and H for human interface with device. Bips human is a limitation of mobile computing. Traditional method of digital payment. There are 3 methods of digital payment. That one is traditional. First one is card, in card, debit card, credit card or smart card.
नेट बैंकिंग, ई वॉलेट, दीज आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट। कार्ड के अंदर 3 डिजिट, डेबिट, क्रेडिट, स्मार्ट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई वॉलेट। नाउ न्यू मेथड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। फर्स्ट वन इज IMPS। IMPS क्या करता है, EFT की तरह ही होता है, जो कि मोबाइल फ़ोन से करते हैं अपने। ओके, अब ये ATM और इंटरनेट बैंकिंग पे भी आ गया है। तो IMPS क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। इसमें क्या होता है, EFT होता है, EFT की तरह होता है, मोबाइल फ़ोन से करते हैं। और ये ATM और इंटरनेट की तरह आ गया है, उनकी तरफ भी आ गया है। AEPS क्या होता है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस होता है, जो गवर्नमेंट इंडिया है वो मतलब नियर फ्यूचर में इसको लॉन्च करने का सोच रही है। मतलब ये बाद में फिर POS मशीन है उसके साथ यूज़ होगा। तो IMPS, AEPS। नेक्स्ट वन इज USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन। इससे कोई भी इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन नीचे होता है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं, USD बैंकिंग के थ्रू या फिर *99 हैज़ बैंकिंग, इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल मोबाइल बेस्ड बैंकिंग होता है, USSD। ओके, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, डज नॉट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन और स्मार्टफोन। अपने अभी तक 3 हो गए, IMPS, AEPS और USSD। नेक्स्ट इज भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये NPCI ने डेवलप किया है, बेस्ड ऑन UPI पे ये बेस है। नेक्स्ट वन इज UPI, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस। इसमें क्या होता है, पावर जो मल्टीपल बैंक अकाउंट होते हैं उनको पावर देता है, और जो बैंकिंग फीचर है एक सिंगल जो मोबाइल होगा उसके अंदर इन सबको ये पावर दे देता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट को और बैंकिंग फीचर्स इन अ सिंगल मोबाइल ऐप। तो ये UPI। और नेक्स्ट वन इज मोबाइल वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट दैट स्टोर पेमेंट कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑन मोबाइल डिवाइस। एक वर्चुअल वॉलेट होता है जो कि जो पेमेंट का जो भी अपना कार्ड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है मोबाइल डिवाइस पे। तो अभी तक अपने 6 हो गए, IMPS, AEPS, USSD, भीम, UPI, मोबाइल वॉलेट। नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स अ नाउ व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी प्रोड्यूस्ड बाय पब्लिक नेटवर्क। एक डिजिटल करेंसी है जो कि पब्लिक नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया है, ना कि किसी मतलब गवर्नमेंट ने किया है, पब्लिक नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया है। यूज क्रिप्टो करेंसी टू एंश्योर दैट पेमेंट आर सेंट एंड रिसीव्ड सेफली। हमें क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करना है ये एंश्योर करने के लिए पेमेंट है वो भेज दी गई है और रिसीव हो गई है सेफली। इन दिस ऑल डाटा इज स्टोर्ड विद, इसमें जो सारा डाटा स्टोर्ड होता है वो क्रिप्टोग्राफी के साथ स्टोर होता है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक डिजिटल करेंसी है जो कि पब्लिक नेटवर्क ने प्रोड्यूस किया है, ना कि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया है। ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इंश्योर कर सकें कि पेमेंट सेंड और रिसीव हो गई है सेफली। इसमें सारा डाटा क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में स्टोर होता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, इको फ्रेंडली पे करो, रिटर्न डिस्काउंट विद लेस रिस्क। इको फ्रेंडली पे करना है अपने को, रिटर्न लिखा हुआ डिस्काउंट भी अपने को पे करना है कम रिस्क के साथ। इको फ्रेंडली पे करो रिटर्न डिस्काउंट को विद लेस रिस्क। तो इको मीन्स इजी एंड कन्वीनियंट, तो इजी का आ गया और कन्वीनियंट के लिए CO आ गया, इजी एंड कन्वीनियंट। फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो अपना इको फ्रेंडली पे करो, तो इको का हो गया था इजी एंड कन्वीनियंट, फ्रेंडली का एनवायरमेंट फ्रेंडली और पे का पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर। अब है रिटर्न का रिटर्न रिकॉर्ड, डिस्काउंट का डिस्काउंट फ्रॉम, हमें टैक्सेस से डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, लेस रिस्क। तो इको फ्रेंडली पे करो रिटर्न डिस्काउंट को विद लेस रिस्क, इको फ्रेंडली पे करो लिखे हुए डिस्काउंट को लेस रिस्क के साथ। इको इजी एंड कन्वीनियंट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, पे और सेंड मनी फ्रॉम एनीवेयर, रिटर्न रिकॉर्ड, डिस्काउंट फ्रॉम टैक्सेस, लेस रिस्क। नेक्स्ट इज ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। तोड़ ने डिस्प्यूट इंक्रीज कर दिया, मतलब किसी चीज़ को तोड़ा और उसने क्या किया, झगड़े को बढ़ा दिया। तोड़ी ने, जो तोड़ने वाला तोड़ी था ना, उसने डिस्प्यूट को इंक्रीज कर दिया। तो ये क्या है, डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, तो मतलब ड्रॉबैक्स है डिजिटल पेमेंट का। T मीन्स डाटा थेफ्ट हो गया, O ओवर स्पेंडिंग, DI डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, T फॉर डाटा थेफ्ट, ओवर स्पेंडिंग, डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, I स्टैंड फॉर इंक्रीज बिजनेस। नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी एप्लीकेशन है होम अप्लायंस, ऑफिस मशीन्स, ट्रैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, डस्टबिन वाला है, मतलब गवर्नमेंट जो ट्रैक करते हैं डस्टबिन वो वाला है, ट्रैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चिप इन देयर बॉडीज, वेरेबल्स, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सप्लाई चेन, कनेक्टेड कार। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हॉट चिप वियर कर रही है स्मार्ट कार, ठीक है, जो हॉट चिप है ना वो स्मार्ट कार है उसको वियर कर रही है। तो जो H है उसका हो गया होम अप्लायंस, O का ऑफिस अप्लायंस, T का ट्रैक ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चिप का चिप इन देयर बॉडीज, वेयर का वेरेबल्स, ओके, और स्मार्ट के लिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट सप्लाई चेन और कनेक्टेड कार। हॉट चिप वियर कर रही है स्मार्ट कार, क्योंकि लास्ट में नहीं है उसको काट दो, हॉट चिप वियर कर रही है स्मार्ट कार, तो कनेक्टेड कार हो जाएगा लास्ट में। अपना रिस्क ऑफ IoT, रिस्क क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, तो रिस्क किस किस को है, रिस्क टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर,
रिस्क टू यूजर, रिस्क टू क्या है इसको, टेक्नोलॉजिकल रिस्क है, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। अब जो यूजर है उसके अंदर सी पाएगा एस सिक्योरिटी, आई फॉर इंटेंशनल ऑब्सोलिसेंस ऑफ डिवाइसेस, पी प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। तो सी सिक्योरिटी, आई इंटेंशनल ऑब्सोलिसेंस ऑफ डिवाइसेस, पी प्राइवेसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, यूजर, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ओके, तो मतलब बनाने वाले को है, यूज़ करने वालों को है, किसके वजह टेक्नोलॉजी की वजह से, और टेक्नोलॉजी की वजह से एनवायरनमेंट को भी रिस्क हो रहा है। अब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगता है ये, जो अपने ऐसे स्ट्रीम लेते हैं 11th में, मैथ्स कोई मैथ लेता है, नॉन मेडिकल लेता है, कोई मेडिकल लेता है और कोई आर्ट्स लेता है, तो अपन उनके थ्रू याद करेंगे। प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम, क्रिएटिंग एन आर्ट, मेडिकल डायग्नोसिस इन कैंसर रिसर्च। तो ये मैथमेटिकल, आर्ट और मेडिकल याद हो गया। उसके बाद अपने सोप के नाम से याद रख सकते हैं या ऐसे भी याद रख सकते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल, आजकल सेल्फलेस ड्राइवरलेस कार आ रही है वो। सर्च इंजन, ऑनलाइन असिस्टेंट जैसे कि सीरी होता है। प्लेइंग गेम्स, तो प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम, क्रिएटिंग एन आर्ट, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑटोनोमस व्हीकल, सर्च इंजन, ऑनलाइन असिस्टेंट और प्लेइंग गेम्स। दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ एआई। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ एआई। जो एआई की रिस्क है वही मशीन लैंग्वेज के भी रिस्क होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क है वही मशीन लैंग्वेज के होंगे। तो रिस्क ऑफ एआई एंड एमएल टेक्निक इज टीडियस, रिलाई हैविली ऑन डाटा, डाटा भी बहुत ज़्यादा रिलाई करता है। कैरी द सिक्योरिटी थ्रेट, टी फॉर थ्रेट, टी फॉर डाटा, किल ह्यूमन स्किल ऑफ थिंकिंग द अनथिंकेबल। तो टी यहाँ पर डी एस हो जाएगा स्किल का, तो टी फॉर थ्रेट, डी का डाटा, एस का स्किल। रिलाइज हैविली ऑन डाटा, कैरीज द सिक्योरिटी ऑफ थ्रेट, किल ह्यूमन स्किल्स ऑफ थिंकिंग अनथिंकेबल। नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग ये एआई का ही टाइप है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एआई दैट प्रोवाइड कंप्यूटर विद एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर को ना खुद की एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो खुद से कुछ सीखे, बिना कोई बाहर से प्रोग्राम लिए हुए खुद से कुछ सीखे। तो ये मशीन लर्निंग की डेफिनेशन होगी। इसके एप्लीकेशन वो सेम है, लेकिन स्पेसिफिकली पूछे इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो जो उन्होंने मैथमेटिकल और आर्ट की बात की थी वो निकाल देंगे। बाकी जो भी ऑटोनोमस व्हीकल वो सब थे वो सब इसमें आ जाएंगे। रिस्क है वो सेम एज एआई। नेक्स्ट इज BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। इससे क्या होता है, रेफर्स टू अ बिजनेस पॉलिसी, रेफर्स टू अ बिजनेस पॉलिसी दैट अलाउ एम्प्लॉय टू यूज देयर प्रीफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। मतलब एक बिजनेस पॉलिसी है जो एम्प्लॉयज़ है उनको अलाउ करती है कि उनके जो प्रीफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है ना वो यूज़ करें। जो प्रीफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है वो एम्प्लॉय यूज़ कर सकते हैं। तो एडवांटेज क्या हुए ब्रिंग योर ओन डिवाइस के, कि मतलब एम्प्लॉय खुद का डिवाइस ला रहे हैं तो उसमें उनका डाटा होता है, वो कभी भी देख वगैरह सकते हैं, तो एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे, हैप्पी एम्प्लॉयज़। और मतलब फिर उनका आदत होगी स्पीड वगैरह बनी रहती है खुद के डिवाइस पे, तो इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, हैप्पी एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। फिर मतलब वो अपनी एफिशिएंसी को बनाए रखेंगे, तो उससे क्या होगा, वो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे अडोप्ट करेंगे। तो अर्ली अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, ये तो हो गया एम्प्लॉय के बेनिफिट। अब कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसका आईटी बजट, मतलब उसको खुद से डिवाइस नहीं देना पड़ रहा, तो लोअर आईटी बजट। और जो सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है मेंटेनेंस की, उसे वो मतलब स्पेशल टेक्निकल टीम रखनी पड़ेगी, तो रिड्यूस आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट, हैप्पी एम्प्लॉयज, इंक्रीज एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अर्ली अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, लोअर आईटी बजट, रिड्यूस आईटी सपोर्ट रिक्वायरमेंट। ऊपर वाले 3 एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, नीचे वाले 2 कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। नेक्स्ट इज एमर्जिंग BYOD थ्रेड्स। तो इसको अपने नदी के नाम से याद रखेंगे। एन स्टैंड फॉर नेटवर्क रिस्क, ए फॉर एप्लीकेशन रिस्क, डी डिवाइस रिस्क, आई का इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। नेटवर्क एप्लीकेशन डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन डिवाइस इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज नदी एमर्जिंग BYOD थ्रेड्स। नेक्स्ट इज वेब 3। वेब 3 क्या होता है, वेब 3 आल्सो नोन एज सिमेंटिक वेब, सिमेंटिक वेब भी कहते हैं। इट डिस्क्राइब साइट्स वेयर इन द कंप्यूटर जनरेट रो डाटा ऑन देयर ओन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। इसको सिमेंटिक वेब कहते हैं। ये साइट्स वगैरह होती हैं उनको डिस्क्राइब करता है जहाँ पे कंप्यूटर रो डाटा उसको खुद ही जनरेट कर देता है बिना कोई यूजर की इंटरेक्शन के। तो व्हाट इज वेब 3.0, आल्सो नोन एज सिमेंटिक वेब, डिस्क्राइब साइट्स वेयर इन कंप्यूटर जनरेट रो डाटा ऑन देयर ओन विदाउट डायरेक्ट यूजर इंटरेक्शन। अब 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ वेब 3.0, 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं वेब 3.0 के। फर्स्ट वन इज सिमेंटिक वेब, दिस प्रोवाइड वेब यूजर अ कॉमन फ्रेमवर्क। ये जो यूज़र होता है वेब यूज़र उसे कॉमन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं शेयर करने के लिए, और क्या करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए डाटा, जो हमने शेयर कर सकते हैं डाटा को और फिर से यूज़ कर सकते हैं अक्रॉस वेरियस एप्लीकेशन, एंटरप्राइजेस एंड कम्युनिटी, एंटरप्राइज के अक्रॉस और कम्युनिटी के अक्रॉस। तो व्हाट इज सिमेंटिक वेब, दिस प्रोवाइड वेब यूजर अ कॉमन फ्रेमवर्क that could be used to share and reuse the data across various application, enterprise and community।
इसके आगे भी लिख सकते हैं। अगर 75 पूछे तो मशीन आर एबल टू टेक डिसीजन ऑन देयर ओन बाय फाइंडिंग, कंबाइनिंग एंड एक्टिंग अपॉन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब। अब जो यूट्यूब वगैरह होते हैं, जो अपने वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, मेनली उन्हीं वीडियोज़ को दिखाते हैं, मतलब जिनको अपने देखते हैं। तो मशीन क्या करती है, वो खुद से डिसीजन ले सकती है, फाइंड करके, कंबाइन करके और एक्टिव करके अपना रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर कुछ काम करके ऑन द वेब। अब एक कंपोनेंट तो था सिमेंटिक वेब, सेकंड है वेब सर्विस। तो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। वेब सर्विस एक सॉफ्टवेयर होता है दैट सपोर्ट कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरेक्शन ओवर द इंटरनेट, जो कि कंप्यूटर से कंप्यूटर जो भी इंटरेक्शन होती है इंटरनेट के ऊपर, उसको सपोर्ट करता है। इफ़ यू आर हैप्पी विद द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, then please like the video and subscribe my channel. Thank you.